हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है फुल सिलेबस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेके आया हूँ एक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम SNI के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हम लोग SN1 और SN2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी का मिस हो गया तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से उसको देख लेना। अब बात करते हैं हम SNI रिएक्शन के बारे में। ये जो हमारी SNI रिएक्शन होती है, most commonly we observe this reaction in case of alcohols, where in case of alcohols when we convert a alcohol molecule into a chloroalkane. Okay, when we convert an alcohol molecule to a chloroalkane using thionyl chloride, SOCl2. In this case we observe SNI reaction. Along with this chloroalkane, we observe here HCl, formation of HCl and formation of sulfur dioxide. So HCl, it forms in the form of gas, SO2 also forms in the form of gas, and they escape from the reaction. And because since the byproducts of this reaction are gases, so this reaction is considered one of the best reaction for the conversion of alcohol into chlorocarbons. Okay, so we see SNI reaction here in this case only. Mostly we'll see when alcohol is converted into chloroalkane using thionyl chloride. In some cases you can see it's a thionyl chloride SOCl2, people also use COCl2. Okay, people also use COCl2. Here also you will observe SNI reaction, that is internal nucleophilic substitution. Now the question arises that how it is known as इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई यहाँ पे हो सकता है कोई हमारे यहाँ से Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल बन गई, ही इज अटैकिंग डायरेक्टली ऑन दिस CH2 ग्रुप एंड OH इज लीविंग। सो व्हाट बिग डील इन दिस? ऐसा तो SN1 में भी हो सकता है, SN2 में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे SNI क्यों है? तो ये जानने के लिए, हम इस वर्ड को समझने के लिए, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल फिलिक को समझने के लिए हमें इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म देख के हम बता सकते हैं कि व्हाई वी कॉल इट इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो मैकेनिज्म हम इसका देखते हैं। ओके, so let's start with the mechanism. So if I take this alcohol molecule here, this RCH2OH, and when I treat it with thionyl chloride, that is SOCl2, so SOCl2 can be written in this form. Okay, so SOCl2. Now this sulfur is connected to chlorine atoms as well as one oxygen atom. Now we know that oxygen and chlorine both are more electronegative than sulfur, and because of that this sulfur acquired a partial positive charge. Okay, now we know that in the alcohol, this hydroxy group, the oxygen of this hydroxy group, it contains lone pair electron, and we are also aware that if a species has lone pair electron, that can behave as a nucleophile. That means if this oxygen atom can behave as a nucleophile and this sulfur can behave as a electrophilic center, because यहाँ पे क्या है, partial positive charge इस sulfur atom में। So when it will attack here, so this will go like this. आप यहाँ से सीधा Cl minus भी निकाल सकते हैं, और आप इसको दो स्टेप में भी कर सकते हैं। तो I'm doing 2 steps. So I will have this RCH2 OH S O minus Cl and Cl. Okay, I will get this intermediate. Now what will happen? This will come here back and this will leave. So will this Cl minus leave from here, and then we obtain another intermediate of this type. So we obtain this intermediate. ठीक है, clear? Now this Cl minus which is generated here, it attacks on this hydrogen. This Cl minus attacks on this hydrogen and get eliminated in the form of HCl. Okay, HCl gas यहाँ पे निकल जाती है, and we left with RCH2 OS double bond O can be C. So we have reached on this intermediate, but what is our target? We have to get this one. This is our targeted molecule. अब यहाँ पे जो Cl माइनस निकला था, जो एक
न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो प्रोटॉन लेके चला गया। नाउ व्हाट वी हैव लेफ्ट, वी हैव लेफ्ट दिस मॉलिक्यूल, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे Cl है, ठीक है। वी नो दैट हैलोजन्स जो है उनके पास क्या होता है, उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स के पास, जो Cl इसके पास क्या ब्रह्मोस्फेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। एक तो इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में, एंड देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। आगे क्या है, इसके पास क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो दिस क्लोरीन कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके, नाउ जब ये न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो वेयर इज ओवर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कहां पे होगा, when you see this carbon is attached to this oxygen. We know that oxygen is more electronegative than carbon, so it will attract the electron towards itself, this oxygen atom, and because of this there will be a partial positive charge. Okay, again if you see sulfur it attached to Cl and it is oxygen, also this side is there oxygen, but because of this oxygen and this Cl, this sulfur will feel deficiency of electron and in return it will attract electron from here. इसके पास एक पॉसिबिलिटी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, इस सिस्टम के पास से आ रहे हैं। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास जाएंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील करेगा, तो यहाँ से और इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, जिससे जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा सा इनहांस हो जाएगा। दैट मींस कि जो कार्बन है ये हमारे सफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो जाएगा या बन जाएगा। नाउ दिस Cl which contains lone pair electron, it will attack on this carbon, okay, and this one will break like this and this will go like this, okay. Now if you see the nucleophile, जो उसमें न्यूक्लियोफाइल है सेक्शन में, जिसमें हमारा जो अल्कोहल है जो उस पे क्लोरोएल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, जो Cl की जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे जो अटैच हो रहा है इस कार्बन पे, ये हमारे इस मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट है, विद इन द मॉलिक्यूल। एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के लिए, एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही है, क्योंकि सिलेक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे सबस्ट्रेट के अंदर ही होता है और न्यूक्लियोफाइल का एक इंटरनल अटैक होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो व्हेन इट विल अटैक इट विल गिव अस this R CH2 Cl and along with this we will get SO2 that will be in the form gas and will escape from the reaction mixture. So this is the mechanism of this internal nucleophilic substitution reaction, and because this nucleophile is present within the molecule, it attacking internally at the electrophilic center, we call it internal nucleophilic substitution reaction. Clear? Okay. Now यहाँ पे चीज और आती है about the stereochemistry. हमने SN1 रिएक्शन में पढ़ा कि SN1 रिएक्शन में भी ऑब्जर्व racemic mixture, अगर हमारे पास कायरल कार्बन हो, अगर हमारे कार्बन जो ही है जो स्पीशीज को लगाओगे इस पे कुछ और ग्रुप लगा होता, यहाँ पे कोई R डैश ग्रुप लगा होता, सो इट वुड हैव बीन ए कायरल सेंटर, तो उस केस में मुझे क्या प्रोडक्ट मिलता, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, टेंशन ऑफ जो कॉन्फ़िगरेशन है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में रहेगा, या विल गेट ए इन्वर्जन ऑफ सेंटर इन द प्रोडक्ट। क्या होता है इसमें, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो, मैं मैकेनिज्म बताने से पहले इसका कैसे हो रहा होता है इस पर आप कुछ चीज यहाँ पे ध्यान देना चाहूंगा, आपका एक फोकस कराना चाहूंगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है जो Cl है, इसका जो अटैक है वो किधर से है, वो उसी साइड से है जहां से हमारा लिविंग ग्रुप जा रहा है, ठीक है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डायरेक्शन ऑफ लिविंग ग्रुप बोथ आर सेम, दोनों एक ही साइड से, एक न्यूक्लियोफाइल इधर से आ रहा है और लिविंग ग्रुप इधर से जा रहा है, एक ही सेम साइड से प्रोसेस हो रही है, न्यूक्लियोफाइल का आना लिविंग ग्रुप का जाना, दोनों क्या है वो एक ही साइड से। ओके, दैट मींस कि अगर मेरा जो कंपाउंड है, अगर उसमें जो कार्बन है ये कायरल है, तो जिधर से मेरा लिविंग ग्रुप जा रहा है उधर जाके मेरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। दैट मींस कि जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, जो मेरे कार्बन जो है, जो कायरल कार्बन होगा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये रिटेन रहेगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, आई विल शो यू सिंपल सा एग्जांपल पहले लेता हूं, मैं एक एग्जांपल और लूंगा, दो एग्जांपल करते हैं। चलो भी मेरे पास ये है मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे टाइटेनियम, यहाँ पे ये है, ये मेरा कायरल कार्बन है, इसका RS कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एंटी क्लॉकवाइज प्रायोरिटी ग्रुप्स की बढ़ रही है, इट विल बी S। ओके, नाउ आई विल रिएक्ट विद SOCl2, इसको SOCl2 से रिएक्ट कराएंगे
सो मैं यहाँ पे 2 स्टेप स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधा इंटरमीडिएट लिखूंगा जहाँ पे इंटरन्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है. सो आई विल ऑब्जर्व दिस, आई विल गेट दिस. ओके, एक ये यहाँ पे क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा. अब ये जो मेरा Cl है, क्लोरीन है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है. और ये किधर से अटैक करेगा, ये इस साइड से अटैक करेगा, इधर से, और मेरा लिविंग ग्रुप इधर से निकल के जाएगा. दैट मींस कि जहां से लिविंग ग्रुप निकला है वहीं पे आगे क्या रहेगा, वहीं पे आगे Cl लगेगा, ठीक है. ओके, जहां पे मेरा ये OH ग्रुप था, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, राइट हैंड साइड में था. मेरा लिविंग ग्रुप भी कहाँ है, राइट हैंड साइड में. ओके, अब इसका RS करके देख लेते हैं. 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज प्रायोरिटी बढ़ रही है, तो ये कैसा होगा, ये भी S. सबस्ट्रेट हमारा कैसा था, S था. प्रोडक्ट हमारा कैसा है, S है. दैट मींस कि जो कॉन्फ़िगरेशन है मेरे इस कार्बन सेंटर का, कायल कार्बन का, जिस पे मेरा लिविंग ग्रुप, जिस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, वो प्रोडक्ट में कैसा रहता है, रिटेन रहता है. दैट मींस कि जो SNI रिएक्शन होती है, सिंपल जो SNI रिएक्शन होती है, दे प्रोसीड्स इन द केस ऑफ कायल मॉलिक्यूल्स, दे प्रोसीड्स विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कायल सेंटर इन द प्रोडक्ट. ठीक है, क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा. एक एग्जांपल और मैं इसका लेके देखते हो, बता दूंगा आपको. एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका. लेट मी टेक दिस एग्जांपल, pH, हाइड्रोजन, OH and CH. ओके, लेट्स सी वी हैव दिस मॉलिक्यूल. इसका भी करते हैं क्या, RS निकालते हैं पहले. तो ये 1 2 3 4, प्रायोरिटी एंटीक्लॉकवाइज इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, सो इट विल बी S. अगर स्टेम रिएक्शन करवाते हैं इथाइल क्लोराइड SOCl2, जो इंटरमीडिएट बनेगा, दैट विल ऑब्टेन, विल बी लाइक दिस, pH CH3 O, sorry, हाइड्रोजन O S O C. ओके, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो हमारे अंदर न्यूक्लियोफाइल है, ये इधर से अटैक करेगा और ये ग्रुप हमारा ऐसे निकल के जाएगा. तो यहाँ पे भी अगर आप देखो रहे हो, तो आप देखोगे, यू विल सी कि जो पोजीशन है न्यूक्लियोफाइल की, वही है जो OH की थी. ठीक है, और अगर आप इसको अगेन यू विल डू नंबरिंग to find out the configuration of this, then you will see 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज प्रायोरिटी इंक्रीज हो रही है. सो ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा S प्रोडक्ट. रिएक्टेंट हमारा S, प्रोडक्ट हमारा S. दैट मींस कि जो रिटेन, जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका कार्बन का, वो रिटेन है. ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा. इसमें अभी आपके 2 केसेस और रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. वो केसेस क्या है कि अगर हम प्रीडिन यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट, तो क्या होगा, अगर हम नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा. ठीक है, इन केसेस में क्या होता है, कैसे SNI रिएक्शन इफेक्टेड होती है, कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन इफेक्टेड होता है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक आप इसको बेसिक जो है रिएक्शन का आप इसको समझिए. ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक यू सो मच.